Hello students, welcome to the industrial management class lecture number 7. Today let us discuss the types of organization. In the last class we have discussed the planning and what are their disadvantages, what are their advantages and how to be planned and what are their importance. Now let us discuss the types of organization. So types of organization, the first one is line or a scalar organization. So in details we will discuss. Let us before that just to go through the flow chart. So how that work is distributed and how they are internally connected. The main is a general manager. Under the general manager, everybody is here. See here, general manager. Under that there is a sales manager, production, superintendent, accountant. They are all, even account officer, they are comes under the general manager. Even that foreman worker also comes under him. But there is a order accordingly, so you have to behave. There is a protocol. It is this worker, he cannot go to directly production superintendent or whatever in this level, whatever they are in this level, so you cannot meet directly over there. So under this sales manager, there is a salesman. Now there is accountant, comes under his there is account officer. But in the production department, so again there are different shop floors are there. It may be a machine shop, it may be assembly shop, or it may be a painting shop, like that. So these people are comes under the production superintendent. So again that each floor there is a one foreman. For the different section there are a foremen. Under the foreman there are a workers. So this is the what the structure, a line or a scalar organization. In detail, this organization is also known as a departmental or military type of organization. In this organization, the authority flows from top to bottom in a vertical lines. Therefore, this is known as line or a scalar organization. You see this, why it is called as a vertical? General manager, again there is a production superintendent, one line I am taking, and after that there is a foreman and there is a worker, like that. So this is the vertical line, so that's why it is called as a line or a scalar organization. In such organization, the business activities are divided into three groups, namely finance, production and sales. Okay, right. It is divided into three groups. So one is a finance, then after that production, and after that sales. So from the finance, they will finance whatever you want, raw material. Then production department will produce the products, and after that it goes to the sales department. The work of the sales department, they are going to sell the products over there. इसमें तीन ग्रुप होता है, एक फाइनेंस, प्रोडक्शन एंड sales. Sorry. In such organization, superior exercises a direct authority over his subordinates, who become entirely for their performance to the commanding superior. No operation is allowed under two bosses. एक ही बॉस रहता है. अभी जनरल मैनेजर आप लोग देख लिया. So he is only direct the things over there. He only give the orders to the subordinates. मतलब उसका अंदर जो भी काम करते हैं, अंदर जनरल मैनेजर का अंदर सेल्स मैनेजर सॉरी प्रोडक्शन मैनेजर, then finance or account officer. Okay, so these are the subordinates of the general manager. He is going to direct the things, he is going to pass the information. So next, it is also known as the military organization. ये जो लाइन और स्केलर ऑर्गेनाइजेशन को आप लोग डिपार्टमेंटल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं. क्यों? बिकॉज मिलिट्री में हाई ऑर्डर, एक बॉस जो भी ऑर्डर देता है, एवरीबडी हैज़ टू फॉलो वट एवर ही इज गोइंग टू गिव द इंस्ट्रक्शन. टॉप लेवल it is to be followed by all the lowers here. There is no argument. Whatever he says, you might have, आप लोग देखा होगा मिलिट्री में कैसा रहता है, वो जो भी उसका सुपीरियर जो भी ऑर्डर देता है उसका सब ऑर्डिनेट फॉलो ही करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली.
Similarly, in this organization, order from general manager have to be followed without asking any questions by subordinates, and hence no chances of shifting of responsibility as in a military. सो इसका वजह से उसको मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में बोलते हैं। वो जो भी उसका टॉप लेवल का जनरल मैनेजर जो भी ऑर्डर देता है उसको ऐसा क्यों करके क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर मिलिट्री में भी ऐसा ही रहता है, उसका कैप्टन जो भी ऑर्डर देता है द लो ऑर्डर पीपल, सैनिक लोग, सो उसको फॉलो ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस? A clear cut division of an authority and responsibility, hence no scope of shifting the responsibility. इधर क्लियरली अलग अलग सेक्शन है, एक सेल्स सेक्शन है, प्रोडक्शन सेक्शन है, अकाउंट सेक्शन है। अकाउंट सेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका अथॉरिटी क्या है वही करेगा, उसका काम इधर प्रोडक्शन में शिफ्ट नहीं कर सकते, बिकॉज दैट्स व्हाई इट इज़ अ क्लियर कट डिवीजन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसको क्या क्या कौन सा डिपार्टमेंट में है, सो वही लोग उसका काम करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग इन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन भी हो सकता है, ज़्यादा डिसिप्लिन होता है इधर, क्योंकि एक ही आदमी का हम लोग सुन रहे इधर, अलग अलग बॉसेस वगैरह नहीं रहता है। सो इसका वजह से प्रॉपर डिसिप्लिन यू कैन फाइंड इट। इट परमिट्स अ क्विक डिसीजंस, क्विक डिसीजन भी ले सकता है इधर। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल्स इज अ फिक्स्ड, हैंस फॉल्ट्स कैन बी इजिली एंड क्विकली आइडेंटिफाइड। क्योंकि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही रहता है, वो मेरा डिपार्टमेंट में कुछ हो गए तो डायरेक्टली जो भी फॉल्ट रहता है, सो यू कैन फाइंड इट वेरी इमीडिएटली। अकाउंट में कुछ हो रहा है, सपोज इफ यू दैट फॉल्ट इफ यू आर फाइंडिंग इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ऐसा नहीं रहता, क्योंकि अकाउंट का ही काम अलग है, प्रोडक्शन का अलग है, देन फाइनेंस का अलग है, सेल्स का अलग है। वो जो भी फॉल्ट रहता है वही डिपार्टमेंट में डायरेक्टली आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। एवरीबडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम रिमेन्स बिजी लाइक मशीन and hence total cost of product will be less. Production cost automatically कम होता है इधर। It is a simple to understand, there is a no ambiguity, इतना confusion अगर रहता है, वो जो भी सिस्टम है उसको आप लोग easily understand कर सकते। Flexible and able to extend or a contract, या ये जो टोटल सिस्टम रहता है ना, आप लोग एक्सटेंड भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, उतना फ्लेक्सिबिलिटी है। Then disadvantages, it requires a different departmental head to be expert in their respective function, hence lack of specialization. एक ही आदमी का ऊपर आप लोग चला नहीं सकते, अलग अलग डिपार्टमेंट है। ओके, अकाउंट डिपार्टमेंट में जाके आप लोग इंजीनियर को अपॉइंटमेंट किया तो होता नहीं है, क्योंकि अब जो भी डिवीजन रहता है, अलग अलग डिपार्टमेंट रहता है, वो कौन उसमें टैलेंट रहता है वही आदमी को आप लोग उसको रिक्रूट करना पड़ेगा। डिपार्टमेंटल हेड्स आर ओवरबर्डन्ड विथ द वेरियस रूटीन जॉब्स। डिपार्टमेंटल हेड एक अलग अलग सेक्शन रहता है, उसका हेड ओवरबर्डन होता है, क्योंकि रूटीन जॉब्स जो भी रहता है ऑलरेडी देर इज अ डिसिप्लिन, यू हैव टू फॉलो दैट वन पर्सन हियर, बिकॉज दे यू पीपल ऑलवेज द पीपल आर बिजी लाइक अ मशीन्स हियर। इसका वजह से वो जो बॉस रहता है उसको एक एक बार बर्डन हो सकता है, मतलब टेंशन। Certain people become key points and they are loaded maximum with work. Yes, की पर्सन मतलब एक सभी लोग उसको ही जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा, उससे इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा। सो इसका वजह से वो बहुत लोड हो सकता है एक ही आदमी को यार, उसको की पॉइंट, वो पर्टिकुलर आदमी को की पॉइंट बोल सकते हैं आप लोग। Chances of accidents, wastage of material and labor are more because of insufficient knowledge of all the work by one man. एक ही आदमी फॉलो करना पड़ेगा, हम लोग एक एक बार लैक ऑफ नॉलेज, ड्यू टू दैट देर आर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट, वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड अ लेबर, ये ज़्यादा हो सकता है इधर। ऐसा क्यों हो सकता है? सो एक ही आदमी पूरा टैलेंट नहीं हो सकता। अगर इफ ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड, सो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट इन जनरल हर एक आदमी इतना पूरा स्पेशलाइज हो नहीं सकता है, सो एक एक बार प्रॉब्लम हो सकता है। चांसेस ऑफ डिले इन रीचिंग द ऑर्डर्स ऑफ जीएम और फ्रॉम अदर हायर अथॉरिटी अप टू द वर्कर्स।
एक एक बार काम डिले हो सकता है। जनरल मैनेजर ऑर्डर दिया रहता है, जनरल मैनेजर कैन नॉट गिव ऑर्डर डायरेक्टली टू द वर्कर हियर, उसका जो सब ऑर्डिनेट है उसका पास करते हैं वो इन्फॉर्मेशन है, वो तब तक इधर मिलने तक एक एक बार डिले हो सकता है जॉब में, वर्क में। Overburdened foreman may not be able to give sufficient time for each job and will cause a wastage and a error. अभी एक सेक्शन को एक फोरमैन रहता है, उसका अंदर 15-20 वर्कर काम कर रहे हैं, तो हर एक का सफिशेंट टाइम देना पड़ेगा, हर एक आदमी को वो क्या क्या कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है। सो एक एक बार इसका वजह से क्या होता है, एक आदमी को दिया रहता है, दूसरा आदमी कुछ गलत हो गया तो इमीडिएटली मे नॉट अटेंड इट, there is a overburden of a maybe a burden to the foreman also sometimes. It was no meanings of rewarding good workers. रिवार्ड करने को ये इसमें चांसेस नहीं है, दैट फैसिलिटी इज नॉट देयर, सो दैट इज अ वन मोर डिसएडवांटेज. Next topic is applications. Such organizations are suitable for factories of a small and a medium size. बड़े इंडस्ट्री में लाइन एंड स्केल ऑर्गेनाइजेशन ये अडॉप्ट नहीं कर सकते आप लोग. जिसका एप्लीकेशन किधर होता है, स्मॉल एंड मीडियम साइज. अभी इधर ही छोटा छोटा इंडस्ट्री है उद्यम बाग में, आप लोग देख सकते हैं. छोटा इंडस्ट्री में वगैरह सिंपल सेक्शन करके एकदम मिलिट्री ऑर्डर का जैसा आप लोग यू कैन हैव अ गुड प्रोडक्शन ओवर हियर. Suitable for continuous process such as a sugar, paper, oil refining, spinning and weaving industries etc. This type of particular organization sugar industry में, then paper industry में रहता है, oil refining रहता है, और spinning and weaving is in such organization. So you can find this line and scalar. Suitable where labor problems are not difficult to solve. एक एक बार हर एक इंडस्ट्री में लेबर का प्रॉब्लम रहता है. ओके, सो किधर लेबर का प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं रहता है, सो नाउ दिस इज अ वेरी मच सुटेबल फॉर दोज पीपल. सुटेबल वेयर ऑटोमेटिक प्लांट्स आर यूज्ड. ऑटोमेटिक प्लांट्स इवन इन अभी उद्यम बाग में गए तो अशोक आयरन है, उसका एक फाउंड्री ऑटोमेशन है. ऐसा हर एक नहीं है. If it is automated systematically, so you can run the industries over here. And the automation है, मीडियम है, स्मॉल है, यह ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर आप लोग उधर बना सकते हैं. सो नेक्स्ट सेकेंड वन इज अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. सो ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देखो, स्केलर और इसका अलग अलग है. ये जनरल मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, देन प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट. प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट का अंदर ये लोग जो ये सब ऑर्डिनेट्स है, सो इसको कनेक्टेड नहीं है इधर. दे आर नॉट कनेक्टेड टू दिस एंड देर इज नो इंटरनल कनेक्शन, बिकॉज ये जो केमिस्ट, डिजाइनर, इंजीनियर है, परचेजर है, दे आर knowledgeable person with their particular section here. And under these people there is a gang boss, inspector, speed boss, a repair boss and workers. These people are like a foreman. इसका अंदर एक एक सबऑर्डिनेट रहता है, उसका असिस्टेंट बोल सकते हैं, केमिस्ट का गैंग बॉस, डिज़ाइनर, इंस्पेक्टर. लेकिन एक ऑब्जर्व कर सकते हैं आप लोग, ये जो भी चार सेक्शन है, गैंग बॉस, इंस्पेक्टर, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, these all are working under these people. केमिस्ट का अंदर चारों ये हो सकता है, he can give the information to all these four. Designer also can give information to gang boss, inspector, speed boss, everybody. Even engineer सभी को, then purchaser वो सभी को. Just you see that lines, these are all connected to this. इसका मतलब क्या है, ये जो केमिस्ट और डिज़ाइनर इंटरकनेक्टेड नहीं है, ये जो थर्ड लाइन है, दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड. बट ये जो फोर्थ लाइन है, दैट इज अ गैंग बॉस, इंस्पेक्टर, स्पीड बॉस, they can have a information from all these four. Then last one is a worker. ये सभी जो चार है इधर, गैंग बॉस, इंस्पेक्टर, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, ये सभी का अंडर ये वर्कर्स रहता है. So this is what the structure it is called as a functional organization. Next,
The difficulty is getting in all round qualified foreman in the line organization can overcome with this type of organization. He is replaced by the various functionalized people. ओके सो इन द स्केलर आप लोग देखा होगा, इधर ये जो गैंग बॉस, इंस्पेक्टर, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इधर फोरमैन रहता है. फोरमैन का अंदर अलग अलग वर्कर्स रहता था. दैट स्ट्रक्चर इज अ डिफरेंट. इधर ऐसा नहीं है, एक ही फोरमैन सभी में स्पेशलाइज नहीं हो सकता है, लेकिन इधर सभी अलग अलग स्पेशलाइज का अंदर वर्कर कर सकता है. सो दैट बटन, so you can remove it. A simple form of functional organization shown in the figure already we have discussed. In this system, specialized people like a chemist, purchasers, engineers, designers, etc. are employed under the production superintendent, and everybody is supposed to give his functionalized advice to all others or bosses and workers. Every boss or foreman will go to individual worker for his related function. Tailor's organization, as it is given by a tailor, tailor employed functionalized bosses, and as far as workman was concerned, instead of coming in contact with the management at a one point, only he was to receive his daily orders and help directly from 8 different bosses, 4 in planning room and 4 in a workshop. A 4 in a planning and 4 in a workshop. ये डायरेक्टली इधर से इसको मिलता है, और ये चारों से ये सभी को उसका पर्टिकुलर जो स्पेशलाइजेशन वर्क रहता है, गैंग बॉस, इंस्पेक्टर, स्पीड बॉस, दीज आर अंडर फ्लोर, एंड केमिस्ट, डिजाइनर, इंजीनियर, परचेजर ऑन द मैनेजमेंट लेवल. सो लाइक दैट, so they can receive the orders, then systematically they can do their work. Then what are the advantages? Due to specialization, quality of work is better. हर एक स्पेशलाइजेशन मिलता है तुमको, इसका वजह से क्वालिटी ऑफ वर्क सो यू कैन अचीव इट. दिस सिस्टम प्रोवाइड्स मोर स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड गाइडेंस टू इंडिविजुअल वर्कर्स थ्रू एक्सपर्ट्स. ऑलरेडी आप लोग स्ट्रक्चर में देखा होगा, हर एक स्पेशलाइज पर्सन है इधर, वो उन लोगों का नॉलेज आप इसको वर्कर को इंडिविजुअली शेयर कर सकते हैं. देन ऑटोमेटिकली सो यू कैन हैव अ more work. They can guide them properly with their knowledge. It helps mass production by standardization and specialization. Mass production आप लोग कर सकते हैं, वो भी एकदम standard with the specialization. If any operation needs improvement, it can be improved even up to the last moment. अगर एक ऑपरेशन आपके पास एग्जिस्टिंग है, उसको इम्प्रूवमेंट करने का है, starting from the end, from the beginning to end, so you can improve that things, because you have a more number of specialization people are there. Considerable expansion of the factory is possible. कितना expand कर सकते हैं एक लिमिट पे, सो आराम से कर सकते हैं इधर. Since for every operation expert guidance is there, hence wastage of material will be minimum, which will reduce the prime cost. Okay, so as you know, we have a different experts are there with their guidance automatically, so you can reduce the wastage. No special knowledge of workers is required, as the instructions are supplied by drawing and experts here. वर्कर में इतना टैलेंट स्किल्ड जरूरी नहीं है, क्योंकि ड्राइंग्स और एक्सपर्ट्स का गाइडेंस आराम से मिल सकते हैं. देर इज़ no need to recruit the talented workers here. Even the normal person can do the work, because in the top level there are different specialized management level is there. Then disadvantages, as every functionalized expert feels himself to be superior than the other, and there is a no one man control over the workers. आपस में झगड़ा हो सकता है, मैं नहीं है तो ये काम नहीं हो सकता, ऐसा एक एक बार कंट्रोवर्सी आ सकता है, because he feels himself, I am the great, I am the superior, he has to follow me. क्योंकि अलग अलग स्पेशलाइज्ड वर्क ये रहता है मैनेजर्स, एक एक बार ईगो वो आ सकता है इधर. बाय एम्प्लॉइंग हाई वेज्ड एक्सपर्ट्स, द टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब में बिकम हाई. क्योंकि स्पेशलाइज पर्सन को, टैलेंट स्किल्ड पर्सन मैनेजर लेवल को आप लोग रिक्रूट करता है, मतलब पेमेंट भी हाई रहता है, इसका वजह से द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट विल बी मोर. As line workers will not be using their skill and their initiative.
लाइन वर्कर मतलब जो लास्ट वर्कर रहता है ना, वो खुद सोच के कुछ नहीं कर सकते। ही विल नॉट, ही इज़ नॉट गोइंग टू यूज़ हिज नॉलेज, इज़ नॉट गोइंग टू यूज़ हिज स्किल, और काम करने के लिए इनिशिएटिव भी नहीं ले सकता है क्योंकि ही इज़ फॉलोइंग देयर सुपीरियर्स हियर। शिफ्टिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ पॉसिबल, क्योंकि आप लोग वो स्ट्रक्चर देखा है, कौन भी किधर भी ऑर्डर दे सकता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरा डिपार्टमेंट में ऐसा शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन लाइन स्केलर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं कर सकते थे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करने से दिस इज़ द वन टाइप ऑफ डिसएडवांटेज ओनली। अभी मैं इधर काम करते रहता हूँ, इधर एडजस्ट हुआ रहता हूँ, इमीडिएटली आप लोग उस तरफ शिफ्ट किया, सो ऑटोमेटिकली एक एक बार उसका एफिशिएंसी कम हो सकता है इधर। द फेल्यूर ऑफ एनी ऑफ द एक्सपर्ट विल लार्जली अफेक्ट द प्रोडक्शन। एक एक्सपर्ट का रॉन्ग डिसीजन में वो प्रोडक्शन में ज़्यादा इफेक्ट अफेक्ट हो सकता है। Proper coordination of work of a different department is required, but it is difficult to maintain as everybody is working individually. Okay, so as already I told, किधर ज़्यादा लोग रहता है, इधर उधर एक एक बार काम ज़्यादा efficiency नहीं बढ़ा सकते कभी। if there is a understanding, proper mutual understanding, so automatically so you can have a good output. usually एक एक बार होता है mutual understanding कम रहता है, इसका वजह से प्रोडक्शन को इफेक्ट हो सकता है। सो दीज आर द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। देन एप्लीकेशन सुटेबल फॉर लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न विच आर कैपेबल ऑफ एक्सपांशन इन फ्यूचर। बड़े बड़े कंपनी रहता है, टाटा मोटर्स, मारुति, सो ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है इधर। ओके, थैंक यू। सो विथ दिस फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, सो विल एंड द सेशन। थैंक यू।